Namaskar, hello, and welcome back. Before beginning with the video for today, let me ask you two simple questions, right? The first question is, do you want to become successful? And the second question is, are you willing to pay the price for becoming successful, right? So if the answer for both of these questions is yes, right? So I would request you all to please wait and stay till the end for this video, so that by the end of this video and you will be definitely able to understand that how it is very much difficult for some people to become successful and why it is very much easy for any one of us to become successful. Because it's like if I say that how many of you want to become successful, probably everybody would say yes, I want to become successful. But when I come to the second question, how many of you are willing to pay the price of becoming successful, right? Then there is a question, right? That probably not everybody is aware of the answers, and at the same time not everybody is prepared to pay the price as well, right? That is the reason if in the population of 7 billion across the world, right, we have a successful people's ratio of around 1 or 2%, not more than that, right? So if you have answered the questions in yes, right, so I would request you all to please stay till the end of this video, right? So without taking much of your time, let's deep dive into the process of becoming successful, right? So understand why everybody wants to become successful, why everybody wants to have something in their life which is definitely going to be a thing which is going to make them set apart from the crowd. Now coming to your सक्सेस डेफिनेशन, राइट, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी रिलेटिव. हर बंदे के हिसाब से उसकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है. आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, राइट, इफ़ यू आर हैविंग अ पैकेज ऑफ से 15, 20, 30 lakhs, यू आर हैप्पी, यू आर हैविंग गुड लाइफ टू स्पेंड, यू हैव अमेजिंग टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली. आप अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं, राइट, सो देन यू आर सक्सेसफुल, राइट. फॉर सम पीपल इट इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंट डेफिनेशन. उनके लिए शायद उनका एक खुद का बिजनेस होना उनके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, उनको सक्सेसफुल बना सकता है, राइट. स्टूडेंट से अगर हम लोग पूछते हैं भैया व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम पास कर लेना शायद उनके लिए सक्सेस है, या उनको एक पर्टिकुलर कॉलेज से जब निकल रहे हैं तो एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब मिल जाना इज सक्सेस. सक्सेस इज डेफिनेटली अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, राइट. इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, राइट, अगर इसका एक हम लोग होलिस्टिक अप्रोच या अगर हम लोग इसको पूरा एज अ होल अगर हम लोग देखते हैं, तो एवरीबडी वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, एवरीबडी वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ सर्टन लेवल जो आज है वहाँ से कम ऊपर चढ़ के वो देखना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर जाऊँ, इस लेवल से इस लेवल तक अगर मैं पहुँचता हूँ तो मैं सक्सेसफुल, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू पेइंग द प्राइस, राइट, व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग अ फाउंडेशन ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, देन देर इज़ समथिंग जो शायद सबके लिए अलग अलग हो सकता है. बट आज के इस वीडियो में जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फाउंडेशन के बारे में बात करूँगा, उन पिलर्स के बारे में बात करूँगा, फाउंडेशन ऑन विच योर एंड पिलर्स ऑन विच योर सक्सेस इज गोइंग टू स्टैंड. एंड व्हेन आई से योर सक्सेस इज गोइंग टू स्टैंड, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल जस्ट स्टैंड, इट विल सस्टेन, right, whatever the situation outside, global slowdown hai, economic problems hai, layoffs hai, whatever the situation outside, I promise you that if you follow the foundation and the pillars on which your success is going to stand, you're 100% going to be in demand. Whatever the market situation is, you will never be in a situation कि भैया अब आपकी डिमांड नहीं है मार्केट में, ऐसा कभी होगा नहीं, right. So let's begin with it and talking about the foundation, right. Before going for anything we should always work on our foundation. मैं कई बार वीडियो की शुरुआत में भी आपसे बोल चुका हूँ कि मैं बेसिक्स के ऊपर आपके साथ बात करूँगा, आज भी बेसिक्स के ऊपर ही आपसे बात कर रहा हूँ. सो द फाउंडेशन फॉर एनी पर्सन टू बिकम सक्सेसफुल इज एटीट्यूड, राइट. व्हेन आई टॉक अबाउट एटीट्यूड, आई मीन दैट हर व्यक्ति के अंदर, हर शख्स के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन आपके आसपास होने वाली चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं, राइट. जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, जिस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं या एक नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं. अगर हर चीज़ मेरी लाइफ में होने वाली अगर मैं उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ तो मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला बंदा होता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में मैं काम करता हूँ, कंपनी में मैं जाता हूँ, जाते ही मुझे ऐसा लगता है कि यार 6 महीने में मेरी प्रमोशन हो जानी चाहिए, राइट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट डजंट हैपन, इट मे हैपन, राइट. अगर आप बहुत उस तरह का, अगर आप इतना लेवल का अगर आप काम करें कि लोगों को लगे कि इस बंदे को अच्छा डिजर्व करता है, इसको प्रमोशन मिलनी चाहिए, आपको 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर भी प्रमोशन मिल जाती है. लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट अगर अपना एफर्ट नहीं रखते तो पहला प्रमोशन देन इट बिकम्स अ लक फैक्टर,
कि अच्छा पहला पहला था ना, नया नया था तो काम कर लिया, प्रमोशन ले लिया, अब उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी, राइट। सो वो लक फैक्टर के अंदर चला जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड, राइट। सो अगेन एटीट्यूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, राइट। मैं इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकती थी, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स। आज मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, क्या उस कॉलेज में मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ? आज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, क्या मैं वहाँ का बेस्ट एम्प्लॉय बन के दिखा सकता हूँ? आज जहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या वहाँ से आगे बढ़ने के बारे में मैं किसी चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ? अगर उन सारी चीज़ों को, क्या मेरा अप्रोच चीज़ों की तरफ देखने का लर्निंग अप्रोच है या नहीं है? अगर मेरा लर्निंग अप्रोच है, अगर मेरा एटीट्यूड सही है, अगर मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, तो आई एम हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, राइट, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ इन एनी डायरेक्शन, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, कितना भी आप काम कर लें, वो सारी की सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी अगर आपका एटीट्यूड कम है। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, राइट, यू माइट बी गिफ्टेड विथ 110 थिंग्स, बट इफ़ योर एटीट्यूड इज़ लाइक ठीक है यार, चलता है यार, होता है यार, दैट हैपन्स, अगर वो चीज़ आपके साथ हो रही है, तो एटीट्यूड मतलब अगर आपका फाउंडेशन कमज़ोर है, तो ऊपर आपके पास चाहे जितनी भी 1000 चीज़ें अच्छी क्यों ना हो, आपका बेस अगर कमज़ोर है तो आपकी बिल्डिंग कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, राइट। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतनी आपकी बिल्डिंग बहुत बढ़िया बन सकती है, राइट। उतना ही आप उस बिल्डिंग के साथ खेल भी सकते हैं, आपको जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए बना सकते हैं। ओनली रिक्वायरमेंट इज योर फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। सो योर एटीट्यूड, योर अप्रोच टुवर्ड्स योर ओन लाइफ हैज़ टू बी 100% श्योर दैट आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो उसको आप पॉजिटिव तरीके से देखें, राइट। हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, राइट। इसके पहले कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बोला था कि देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस ऑल्सो। आने वाले 1-2 वीडियोस में मैं उसके बारे में शेयर करूंगा, दैट हाउ यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट योर ओन लाइफ, राइट, बट यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ कमिंग टू द पिलर्स, राइट, ऑन विच योर सक्सेस इज गोइंग टू स्टैंड। नंबर 1 पिलर ऑन विच you need to be 100% डिपेंडेंट ऑन, आई एम सेइंग डिपेंडेंट, राइट, आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, दैट इज़ योर डिसिप्लिन, राइट। क्या आप में अनुशासन है? क्या आप में किसी भी चीज़ को करने का अनुशासन है? अगर आप में अनुशासन है और अगर आप डिसिप्लिन है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, राइट, यू कैन अडेप्ट टू दैट सिचुएशन वेरी इजीली, राइट। जो बंदा डिसिप्लिन्ड नहीं होता, जिसको समय की वैल्यू नहीं होती, जिसको अपने खुद की वैल्यू नहीं होती, जिसको दूसरे की मेहनत की वैल्यू नहीं होती, राइट, वो सारी चीज़ों को बहुत इजीली टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बेसिक ऑलरेडी काम पे लग चुका है, राइट। अगर आप कॉलेज में आज अगर आप पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में आपका यूनिफॉर्म जो दिया होता है, वो यूनिफॉर्म पहनना इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन, राइट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग टाइम और वहाँ से निकलने का टाइम डिफाइंड है। अगर आप उस टाइम के हिसाब से अगर आपकी रिपोर्टिंग और वहाँ से निकलने का टाइम अगर बंधा हुआ है, देन यू आर अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल। आपको अगर कोई टास्क दिया जाता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और बोल दिया कि भैया 2 दिन में ही आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1.5 दिन तक अगर आपने उस काम को छुआ ही नहीं और आखिरी आधे दिन में अगर आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो द रिजल्ट्स आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एज एन इंडिविजुअल, राइट। जिस तरह का आपका पोटेंशियल आप पहले शायद दिखा चुके हैं, या अपना काम कर चुके हैं, या लोगों को आपको देख करके समझ में आता है कि ये बंदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप उस तरह का रिजल्ट नहीं देंगे, तो शायद फिर लोगों को उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगने चालू हो जाते हैं। सो आई डोंट वांट यू पीपल अगेन टू गेट इनटू दैट मोड जहाँ पर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे, राइट। सो इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन. Always remember that, right? So that is your first pillar on which your success is going to stand, is your discipline. Now second is going to be your dedication, right? जब मैं डेडिकेशन की बात करता हूँ, तो डेडिकेशन के रेफरेंस में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं किसी चीज़ के लिए अपने आप को झोंक देने की ताकत रखता हूँ, राइट। क्या मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे उस काम को करने के लिए, अगर मैं उस काम को देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भैया इस काम को मुझे करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ेंगी, तो क्या मैं उस काम को करने के लिए अपने आप को झोंक दे रहा हूँ? अगर मैं अपने आप को झोंक नहीं सकता, अगर मैं उस काम को देखने के लिए मैं अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तो शायद मेरे साथ काम करने वाले लोग उस चीज़ को उस तरह से नहीं देखेंगे, राइट। अगर मैं लीडरशिप रोल में हूँ और अगर अपने काम के लिए डेडिकेटेड नहीं हूँ, तो मेरी टीम भी उस काम के लिए डेडिकेटेड नहीं होगी, राइट। क्रिकेट का एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, तो अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं कि भैया मैं अपनी कीपिंग कर लूँगा, बाकी टीम अपना अपना काम कर ले, अगर ये अप्रोच MS धोनी अगर अपने अप्रोच के बारे में रखेंगे, अगर अपने क्रिकेट के बारे में रखेंगे, तो शायद टीम उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, राइट। सो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 2011 का वर्ल्ड कप शायद आपको डेफिनेटली याद होगा, जहाँ पर
जो बैटिंग ऑर्डर था उस ऑर्डर को तोड़ करके महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने के लिए आया, बिकॉज ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज ओन शोल्डर्स. ही शोड दैट आई एम डेडिकेटेड टू दैट टू दैट पर्टिकुलर गेम, कि भैया नहीं, आज चाहे जो भी हो जाए यहाँ से जीत कर ही वापस जाना है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन हिज माइंड, कि उसको सोचा उसने और वो करना है, राइट. सो यू नीड टू बी वेरी मच डेडिकेटेड टू वट एवर यू आर डूइंग. जो भी काम आप हाथ में लें, जो भी काम, वो चाहे जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी या बड़ी होती है. लेकिन अगर हम किसी काम को देख करके अगर हमको ऐसा लग रहा है कि भाई इस काम के लिए मैं अपने आप को पूरा झोंक नहीं रहा हूँ, तो मेरे रिजल्ट्स उस तरह से नहीं निकल के आएंगे जिस तरह से मुझसे एक्सपेक्टेड हैं. तो आई एम डेफिनेटली नॉट गिविंग माई 100%, एंड दैट इज समथिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. So your foundation is your attitude. Second, the pillar, first pillar is your discipline. Second is your dedication. Third pillar, which is very much important, is your team playing approach. Right? क्या आप टीम में काम करने के लायक हैं? Right? आज अगर हम लोग दुनिया में कहीं पर भी देखते हैं, इट्स अ ग्लोबल विलेज जिसे हम लोग बोलते हैं. आज आप अपने घर में भी बैठ के अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम हमारे घर में बैठ करके भी हम लोग 10 लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं. Right? We are having people who are working from home, like I am doing work from home. राइट. सो अगर वर्क फ्रॉम होम अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में भी एक अकेला बंदा काम नहीं करता, कोई ना कोई टीम उसके साथ काम कर रही होती है. आज आप सोसाइटी के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, हर काम जो हो रहा है वो टीम प्लेइंग की वजह से ही हो रहा है. अगर टीम एक साथ मिल करके काम नहीं करेगी तो रिजल्ट्स उस तरह से निकल के नहीं आएंगे. एक अकेला बंदा, चाहे जितना भी पोटेंशियल, जितना भी कैपेबिलिटी क्यों ना हो, एक अकेला बंदा अगर सोचे भी, तो शायद आज की डेट में ऐसे बहुत सारे काम है जो शायद एक अकेला बंदा नहीं कर पाता. उसको किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है. आज अगर मैं अपने घर में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ये वीडियो बना लिया और मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, लेकिन अगर इस वीडियो को कोई देखेगा ही नहीं, तो मेरे इस वीडियो बनाने का कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है. राइट. आज अगेन देयर इज, अगर मैं अपने वीडियो को अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ कि यार प्लीज़ ये मेरा वीडियो आप लोगों में सर्कुलेट करिए, अगर मेरे दोस्त मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है और अगर उनका मेरे प्रति अगर अप्रोच कुछ अलग है, तो वो शायद मेरी वीडियो को प्रमोट नहीं करेंगे. अगर उनकी तरफ से मुझे कोई सजेशंस आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उनको भी लगेगा यार हमने तो इसको 3-4 बार बोला ये काम करने के लिए, बट ही इज़ नॉट डूइंग इट, देन व्हाई शुड वी डू इट. राइट. सो कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते. सो ऑलवेज रिमेंबर, एंड टुमारो इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इन अ टीम रोल. राइट. तो अगर आपको टीम के हिसाब से काम करना है, अगर आपको टीम के साथ मिलकर के काम करना है, तो आपको टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा. राइट. सो इफ़ यू हैव दैट एटीट्यूड कि भैया हर काम मैं अकेला कर सकता हूँ, या अगर मैं हर काम अपने आप मेरे अकेले से हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो शायद आप बहुत गलत सोच रहे हैं. राइट. सो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज 4 पैरामीटर्स, बिकॉज इफ योर फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इफ योर पिलर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सक्सेस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन कम वॉट मे दी सिचुएशन इज. राइट. शायद आपको इक्का दुक्का लेवल पे शायद आपको ऐसा थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सक्सेस की जो पैरामीटर्स आप सोच के रखें, या सक्सेस की जो डेफिनेशन आपने बना करके रखी है, जिस तरह से आपको उसमें ग्रोथ मिलनी चाहिए, जिस तरह से आपको खुशी मिलनी चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाएगी. राइट. सो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि आज मैं आपको सक्सेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, या मैं सक्सेस के रिलेटेड मैंने 2 सवाल पूछे. पहला सवाल था कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डू यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल. एंड सेकंड इज, आर यू विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल. जब हम लोग इस फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई ना कोई प्राइस पे कर रहे हैं. जब आप डिसिप्लिन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई ना कोई प्राइस पे कर रहे हैं. डिसिप्लिन, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो अगर मैं सुबह जल्दी उठने की आदत अगर अपने आप को लगा रहा हूँ, तो मैं एक प्राइस पे कर रहा हूँ अपनी नींद के ऊपर, कि भैया नींद छोड़ करके मैं आगे आ रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा. डेडिकेशन, अगर मैं किसी भी काम को शुरू करता हूँ लेकिन मैं सिर्फ शुरू कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं शायद डेडिकेटेड नहीं हूँ, मैं फोकस्ड नहीं हूँ उस काम को लेकर के. तो मुझे अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, तो मुझे अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पर लाना पड़ेगा. सो आई एम पेइंग अ प्राइस फॉर बिकमिंग डेडिकेटेड ऑल्सो. आज अगर कोई भी काम मैं अकेला करता हूँ, मैं टीम के साथ मिलकर के काम वो नहीं कर सकता, तो लोगों के साथ मिलकर के काम करने के लिए भी अगर मुझे सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू लर्न अ लॉट. अगर लोगों के साथ मुझे सीखना है, बैठना है, काम करना है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट फैक्टर एज वेल. राइट. सो जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपका एटीट्यूड नहीं है, राइट, तो आप डिसिप्लिन चाहे आप जितना भी लेकर के आए, लेकिन अगर आप उस डिसिप्लिन की तरफ एक सिंगल इंडिविजुअल एस्पेक्ट की तरह अगर आप उसकी तरफ देखेंगे, तो शायद आपका एटीट्यूड उसको नेगेटिव अप्रोच में ले सकता है. राइट. लेकिन अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है और वो बोलता है कि भैया एटीट्यूड सही है, और वो बोल रहा है कि भैया डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चाहिए ही चाहिए, तो डिसिप्लिन आपके लिए पॉजिटिव बन जाता है. राइट. अगर आपका एटीट्यूड सही है तो डेडिकेशन भी आपके लिए पॉजिटिव बन जाता है. आपका एटीट्यूड सही है तो आपका टीम प्लेइंग भी आपका सही हो जाता है. अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, व्हाटएवर यू डू, हाउएवर यू डू इट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल.
इन एनी सिचुएशन, राइट। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तब भी आप बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, अगर आप घर में भी हैं तब भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप बच्चों के साथ काम करते हैं तब भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, राइट, you need to have a very positive attitude, you need to have discipline, you need to be very dedicated, and at the same time you need to have a skill of being a team player, right? So I hope आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने, सीखने, सुनने के लिए मिला होगा, और अगर आपको इसमें कुछ नया देखने, सीखने, सुनने के लिए मिला है तो डेफिनेटली अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ है जो मैंने शायद इस वीडियो में लेना चाहिए था लेकिन शायद अगर मुझसे स्किप हुआ है तो डेफिनेटली उसे भी आप ज़रूर मुझे बताएं। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट अपनी तरफ से मैं जो कुछ आपको दे रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, राइट, मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, माई एक्सपोजर, राइट। आई मे बी रॉन्ग एट टाइम्स, राइट, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर मैं किसी चीज़ को नहीं पूरी तरह से आप तक पहुँचा पा रहा हूँ तो प्लीज़ वो चीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। आई ट्राई टू इम्प्रूव इट इन माई कमिंग वीडियोज़ ऑल्सो। एंड अगेन इफ़ यू हैव नॉट अभी तक अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर योर वैल्यूबल कमेंट्स। And again the lockdown is still on, so I would request you all to please stay home, stay safe and take care of yourself, and God bless to you. Thank you so much. Hope to see you all very soon. Thank you.